संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र चल रहा है। लगता है कि देश के इस सबसे बड़े मंदिर में भी अब चढ़ावा चढ़ने लगा है। तभी तो डिजिटल इंडिया के दौर में हमारे प्यारे सांसद कैशलेस नहीं बल्कि नोटों की गड्डियां लेकर सदन में पहुंच रहे हैं। इसकी जानकारी खुद राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने दी और सभी सांसदों को सदन में दी। सभापति महोदय ने कहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट नंबर 222 यानी कि 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की है। ये सीट वर्तमान में तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट हुई है। इसके लिए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. बस इतना ही सुनना था कि राज्यसभा में एक बार फिर से हल्ला बोल शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने इस बात पर विरोध जताया कि बेशक ये जांच का मामला है, लेकिन जब तक कुछ निष्कर्ष ना निकले तब तक सीट नंबर और उस पर बैठने वाले सदस्य का नाम लेना अनुचित है। यहाँ विपक्ष की पैरवी करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनु सिंघवी का नाम न लेने की अपील की तो सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद खड़गे ने सत्ता पक्ष पर चिल्लर वाले काम करके देश को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। On this issue, sir, I'll request you to confine to this issue. Only this issue. Please. I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond that. Sir, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। Honorable members. इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सीट नंबर और उस पर बैठने वाले सदस्य का नाम लेने में विपक्ष को क्या दिक्कत है, जबकि ये नोटों की गड्डियां नियमित प्रोटोकॉल की जांच के दौरान ही बरामद की गई हैं और सीट नंबर को डिक्रिप्ट किया गया है। किरण रिजिजू ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं तो सदन में नोटों का बंडल ले जाना उचित नहीं है। This is the upper house and it is highly regarded, and every word spoken and every action we do here are well recorded, documented, and people watch it. And you had in the very initial stage, you have observed correctly that as per the routine protocol checked, the anti-sabotage team checked the seats just to wind up the proceedings and the house. During that procedure, the so-called the note was found. And the seat numbers were deciphered and the members also signed that day. You have mentioned it. But I don't understand why there should be objection that the chair should not take the name of the member. When? No, but then...
Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? And moreover, when the members have agitated, there is a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards the digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. वहीं इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई देते हुए कहा कि यह सरासर आरोप है। मैं सदन में कुल 3 मिनट और कैंटीन में 30 मिनट बैठा रहा। सिंघवी ने कहा कि इस मामले की तह तक पहुंचने में सहयोग करना चाहिए और अगर सुरक्षा एजेंसियों में कोई कमी है तो उसे भी पूरी तरह से उजागर किया जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का भी शायराना बयान सामने आया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के पास बेहिसाब पैसा है, तभी तो सभापति की घोषणा के बाद भी कोई पैसों को क्लेम नहीं करने आया। ये वही लोग हैं जो दूसरों से हिसाब किताब की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अपने बही खाते किसी के सामने उजागर नहीं करते। सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात पर कहा कि बेशक जांच के बाद ही किसी का नाम लेना चाहिए, लेकिन फिर सिर्फ ये मामला नहीं, बहुत सारे विषय हैं जिनकी जांच चल रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है। फिलहाल नोटों के किस्से की हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई जांच की बात कह रहा है। पक्ष विपक्ष सभी नोटों पर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन लावारिस नोट संसद में कैसे पहुंचे, ये वाकई बड़ा सवाल है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही एक बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक प्रकरण प्रकाश में आया, जब सभापति महोदय ने यह बताया कि सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। खड़गे जी के आरोप पर क्या कहेंगे? उन्होंने जो बोला है कि चिल्लर तक आरोप है। खड़गे जी के आरोप नहीं, हम सुझाव का सम्मान करते हैं। नेता सदन नड्डा जी ने भी कहा कि अगर खड़गे जी ने कहा है कि कोई मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे नेता सदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने यह कहा कि जो खड़गे जी का सुझाव था उसे हम सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि जो विषय जांच की परिधि में चल रहे हैं उन पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा यह नहीं हो सकता है कि एक विषय जो सदन के अंदर ही उपस्थित हुआ है उस पर तो जांच से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यत्र तत्र सर्वत्र से लेके और 7 समुंदर पार तक की किसी आवाज पे अगर सुर छिड़ जाए तो विपक्ष यहां ताल मिलाकर और संसद में बवाल करे, यह उचित नहीं है।
हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा। इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।